Hello students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to your computer class. We are going to begin the chapter Okay, number children, 10. so talking about That is internet, what internet online is. surfing. So we can say the internet is defined as a network of millions of computers connected to each other worldwide. Now students, we have computers at our homes. Now बाकी की दुनिया में, बाकी पूरे वर्ल्ड में all are having computers at their homes और एट देयर ऑफिसेज. सो ऑल दीज कंप्यूटर्स, जैसे कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जिस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, दैट मीडियम और दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट. So let's discuss about some popular internet services, which are, so talking about the email, first of all, email, here E, capital E stands for the electronic. So email stands for electronic mail, which facilitates in sending messages and files. We can send pictures, songs, videos. Now students, whenever we fill the Google forms, हम जब भी Google forms fill करते हैं तो उसमें हम सबसे starting में एक email address fill करते हैं. Yes, which is a unique ID, जो हमारी आईडी होती है, जो हमें रिप्रेजेंट करती है. दैट इज़ कॉल्ड द ईमेल एड्रेस. ऑल राइट, सो वी कैन सेंड various messages, pictures through emails to anyone else who we are connected. Now talking about the next thing, that is online chatting. Through internet we can use the chatting, we can do chatting और हम live communication कर सकते हैं किसी भी another person से. Like we can send messages, हम messages भेज सकते हैं and we can get the reply. तुरंत ही हमें reply भी मिल जाता है. So this is the feature of that provides the online chatting. स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि हम आजकल लॉकडाउन में जो हम डेली देख ही रहे थे, फॉर दैट इज़ द जूम क्लासेस, इन विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. बहुत सारे लोग एक ही जगह पे, एक ही डिफरेंट लोकेशंस के पे होने के जगह भी हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, एंड वी डू ऑल दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. We can see the live videos of each other. Talking about e-learning, e-learning again here capital E refers to electronic. So e-learning refers to the electronic learning, which refers to the learning with the help of technology. मतलब हम इंटरनेट के थ्रू हम करें कोई भी न्यू चीज़ सीखें, that is the e-learning. अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड, स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल मेथड कौन से थे, जब हम क्लासरूम में आते थे और हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते थे टीचर से एंड हम सारी चीज़ें लर्न करते थे ऑन द ब्लैक बोर्ड. नाउ वॉट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन विदाउट फेसिंग ईच अदर डायरेक्टली. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, दैट इज़ इंटरनेट फ्री कॉल्स. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम किसी भी पर्सन को जो कि हमारे कॉन्टैक्ट में है, वी कैन कॉल देम, वी कैन वीडियो कॉल देम और वी कैन नॉर्मल कॉल देम. और इसके लिए हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्काइप, व्हाट्सएप, टैंगो और वाइबर. ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, ये हमें बस ऐप्स डाउनलोड करने होते हैं एंड वी कैन कॉन्टैक्ट एनी अदर पर्सन who we want to contact through the voice calls or video calls. Now next thing, e-groups. Again E here means electronic groups. So the group क्या होता है कि एक बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, that is called a group. And electronic group क्या होगा, जब बहुत सारे लोग virtually एक साथ इकट्ठे हों, that will be called the electronic groups. So electronic groups में बहुत सारे लोग जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं या जिनकी सेम हॉबीज़ होती हैं, वो लोग सब इकट्ठे होकर कुछ डिस्कशंस करते हैं या फिर अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. दैट इज़ कॉल्ड द ई ग्रुप्स. Another big feature provided to us, that is social networking. हमारे पास बहुत सारी social networking sites available होती हैं on the internet, like the Facebook, Twitter और LinkedIn. These are all the sites, social networking sites, which means हम बहुत सारे social लोगों से connect हो सकते हैं socially. We can connect all over the world. हम अलग अलग लोगों से जिनको हम जानते भी नहीं हैं, we can connect through these apps and share our views and communicate and talk about the new things and learn all these things. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट टीवी. स्टूडेंट्स, टीवी तो हमें सबको पता ही है. हम रोज़ टीवी देखते हैं. वी वॉच न्यूज़ और वी वॉच एनिमल प्लैनेट्स एंड लर्न वेरियस थिंग्स और वी वॉच टीवी सीरियल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम बहुत सी चीज़ें रोज़ टीवी पे देखते ही हैं. सो वो हम टीवी जो देखते हैं, इफ़ वी वॉच द टीवी थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे टीवी देखें, सीरियल्स और द न्यूज़ अगर हम देखें, दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरनेट टीवी.
जस्ट लाइक दैट वी हैव इंटरनेट रेडियो ऑल्सो। वैसे हम रेडियो, हमारे पास एक बॉक्स होता है जिससे हम रेडियो सुनते हैं, वेरियस चैनल्स हमें अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम रेडियो सुनते हैं। नाउ इफ़ वी डू द थिंग सेम थिंग, अगर हम रेडियो को ऑनलाइन सुने थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरनेट रेडियो। वी हैव वेरियस चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची एट्सेट्रा। ओके चिल्ड्रन, सो देयर लाइक एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। सो इंटरनेट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं विच आर नंबर 1 थ्रेट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्रेट्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली थ्रेट्स होते क्या हैं? A threat can be described as a possible danger to security. It can be either intentional or accidental. Much harm can be done to the security system of the computer through internet. थ्रेट्स क्या होते हैं? जिनसे हमारी सिक्योरिटी या हमारी प्राइवेसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे या कोई भी प्रॉब्लम हो, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज थ्रेट। ये इंटेंशनल भी हो सकते हैं, मतलब ये जानबूझ के किए गए भी हो सकते हैं, और दीज कैन बी एक्सीडेंटल, मतलब गलती से किए गए भी होते हैं। So let's discuss about some of the common threats which we face daily. Students, malware, first of all, it is a term which is made up of two words, malicious and software. Malicious is something that is very harmful to us, and software, we all very well know, a set of instructions. So malicious plus software, we get a new word, that is malware. Now malware होता क्या है? These include all the viruses or worms or Trojan horses which generate through a pop-up message on the screen, and when we click them, जैसे ही हम उन्हें क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है जिससे कि वायरसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाते हैं एंड जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। अबाउट वायरसेस, जैसे कि ह्यूमंस के लिए वायरसेस होते हैं कुछ तरह के जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करने वाले भी कुछ वायरसेस होते हैं दैट अफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम, और उन्हें हमारा जो सारा डेटा स्टोर होता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, और राइट चिल्ड्रन, से जैसे ही ट्रोजन्स जो होते हैं वो भी मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं लाइक सॉफ्टवेयर्स। कुछ टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल, हम कोई सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है या कोई ऐप हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम वो प्ले स्टोर से जाके हम इंस्टॉल करते हैं इंटेंशनली। जो ट्रोजन्स होते हैं वो भी कुछ इस तरह की ऐप्स होती हैं जो कि हमें हार्म पहुंचाती हैं और उन्हें बस सिंगल क्लिक पे ही वो डाउनलोड हो जाते हैं अपने आप, एंड दे प्रिटेंड टू बी अ समवॉट सॉफ्टवेयर बट दे आर एक्चुअली नॉट, दे आर एक्चुअली वायरसेस। सेकेंड थिंग इज़ द वॉर्म्स। वॉर्म्स भी वायरसेस की तरह ही होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आके हमारी फाइल्स या फोल्डर्स या डेटा के साथ अटैच हो जाते हैं खुद, एंड दे डिस्ट्रॉय इट, जिनकी वजह से हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन भी थोड़ा ब्रोक डाउन हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है। ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट की लॉगर्स। की लॉगर्स कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं टू बी अ सॉफ्टवेयर, एक्चुअली वो होते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्ले स्टोर से कोई न्यू ऐप इंस्टॉल करते हैं इंटेंशनली, जस्ट लाइक दैट हमें ऐसे कोई सिंगल क्लिक पे दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे गेट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली, अपने आप ही डाउनलोड हो जाते हैं, बट दे आर वायरसेस एक्चुअली। एंड देन वायरसेस जो हमारे डेटा को या फिर हमारे सब सामान को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कुकीज़। कुकीज़ आर टेक्स्ट मैसेजेस गिवन टू अ वेब ब्राउज़र बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर देन क्या करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, एंड देन विच इज़ कॉल्ड अ कुकी, एंड लेटर वो उसका यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग सम कस्टमाइज वेब पेजेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर होते हैं कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीक्रेटली हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। जो भी वर्क हम कर रहे हैं कंप्यूटर पे वो सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। ये जिससे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर कोई चीज़ें सर्च करते हैं, ये उन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं एंड देन दे यूज़ इट इन अ नेगेटिव मैनर। नेक्स्ट थिंग इज़ स्पैमिंग। स्पैमिंग हम ईमेल स्पैमिंग कहलाती है, जैसे कि ईमेल्स हमें कभी अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं अननोन पर्सन्स के, सो उनके संग अटैच होकर कुछ वायरसेस या फिर कुछ फाइल्स फोल्डर्स आ जाते हैं जिनमें वायरसेस होते हैं। सो व्हेनेवर जैसे ही हम उन पर क्लिक करेंगे वो सारे वायरसेस ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे एंड फिर हमें हार्म पहुंचाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड द स्पैमिंग। टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग दैट इज़ स्केयरवेयर एंड रैंसमवेयर, दीज टू, ये दोनों कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं।
सबसे पहले स्केयरवेयर क्या होता है? इट इज़ अ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इज़ मोलवेयर, जिसे हमने कभी कभी देखा होगा वाइल वी आर सर्फिंग द इंटरनेट। कभी कभी कुछ छोटे पॉपअप विंडोज़ अपने आप ही आ जाते हैं स्क्रीन पे एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट वी टच देम। हम देखना चाहते हैं कि वो क्या है, और जैसे ही हम उन्हें टच करते हैं एक्चुअली दे आर वायरसेस, और वो हमारे स्क्रीन में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाते हैं एंड हमें हार्म पहुँचाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ रैंसमवेयर। ये भी कुछ स्केयरवेयर से ही रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें फ्रॉडलेंट वार्निंग देते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं भी है तब भी ये हमें फेक वार्निंग शो करते हैं दैट देयर इज़ अ वायरस इन अवर कंप्यूटर सिस्टम, एंड देन आउट ऑफ फियर हम इन पे क्लिक करते हैं टू रिमूव द वायरसेस, एंड एक्चुअली ये वायरसेस ही हैं, सो हमारे कंप्यूटर में वायरसेस एंटर हो जाते हैं। Okay students, so now we are going to discuss about the next topic, that is netiquettes. So let's see what are netiquettes. Students, the term netiquette is a combination of two words, that is net, internet, and etiquettes. Etiquettes are the good manners. So combining these two words, we get a new word, that is netiquettes, which means these are those rules or set of instructions through which we need while we are running the internet. तो चिल्ड्रन वाइल यूजिंग द इंटरनेट, हम इंटरनेट को यूज़ करते टाइम हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होता है वाइल यूजिंग द इंटरनेट। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इंटरनेट पे। Now let's see some about the proper uses of internet. So first one is use proper salutations and signature. Students, while communicating on the internet, अगर हम इंटरनेट पे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, so first of all हमें proper salutations और signature यूज़ करना होता है. Salutation is the thing which we use in the starting and signature at the end. नेक्स्ट इज़ इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन। हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या फिर हमारे सब्जेक्ट क्या है हमारे टॉपिक का, वो हमें लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। देन कीप योर मैसेजेस कंसाइज। कंसाइज मीन्स हमें प्रिसाइज मैनर में सारा अपना जो भी हम बात कहना चाहते हैं उसे एक शॉर्ट मैनर में, एकदम क्लीन एंड क्लियर मैनर में हम उसे प्रेजेंट करें। फोर्थ पॉइंट इज़ बी रिस्पेक्टफुल एंड अवॉइड सार्कास्म। हमें रेस्पेक्टफुल बात करनी चाहिए, हमें बहुत ही गंदी लैंग्वेज या फिर कुछ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। देन इज़ फिफ्थ रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। हर पर्सन की अपनी प्राइवेसी होती है एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। सो प्राइवेसी मेनली होती क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आई हैव सम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और सम ऑफिशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन माय लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम। सो कोई और पर्सन मेरी परमिशन के बिना उसे टच ना करे एंड उसे मैसेजेस को ना पढ़े या फिर किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ना करे। दैट विल बी प्राइवेसी। ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ ओबे कॉपीराइट लॉज। कॉपीराइट लॉज क्या होते हैं? मेनली फॉर एग्जांपल इफ़ आई प्रोड्यूस समथिंग, सम न्यू थिंग और सम इनोवेटिव थिंग, सो कोई और पर्सन मेरी परमिशन के बिना उसे कॉपी ना करे, दैट कम्स अंडर द कॉपीराइट लॉज। सेवेंथ पॉइंट इज़ डू नॉट इंडल्ज इन स्पैमिंग। किसी भी तरह की स्पैमिंग में या फिर फेक न्यूज़ को फैलाने में या फिर कोई वायरस को फैलाने में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एट्थ इज़ यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हमें एकदम प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज या अब्यूसिव कंटेंट ऐसा हमें कोई यूज़ नहीं करना चाहिए। नाइन्थ इज़ यूज़ प्रॉपर इमोट आइकन्स। हमें बहुत सारे इमोट आइकन्स हमें गिवन होते हैं ऑन द कीबोर्ड, सो हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए इमोट आइकन्स का, जो कि प्रॉपर रिप्रेजेंट करे हमारे टेक्स्ट को। यूजलेस इमोट आइकन्स हमको हर जगह पे इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए। टेंथ इज़ डू नॉट रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। हम सबके पास या फिर किसी कभी कभी बहुत हाई लेवल ऑफिसर्स वगैरह के पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर लीक हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि हमारे पास अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे किसी भी तरह से लीक ना करें या फिर कहीं और रिवील ना करें। एंड द लास्ट पॉइंट, 11th पॉइंट इज़ बी टॉलरेंट एंड केयरफुल। ऑलवेज़ इंटरनेट यूज़ करते टाइम हमारे पास अपने अपने व्यूज़ होते हैं हर पर्सन के, सो हमें उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें केयरफुली सारा काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।